BA साल دوم کی تمام طلباء و طالبات، ہم پڑھ رہے تھے ڈیسک ٹاپ پبلشنگ پارٹ فرسٹ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے BA سال دوم کا تمام جو سلیبس ہے اس کی جو تمام باتیں ہیں مختصراً ایک خاکے کے طور پر میں نے آپ کو بتا دیا، اور پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیسک ٹاپ پبلشنگ اس پرچے میں مثال میں جو پہلا پوائنٹ تھا، نکات تھا، وہ تھا کمپیوٹر۔ ہم نے اس کے بارے میں ابتدائی تمہیدی معلومات ہم نے پڑھی ہے۔ اب ہمارا پہلا جو پوائنٹ تھا وہ تھا کہ کمپیوٹر آخر ہے کیا۔ ہم ہر وقت سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جدید دور کے حساب سے کمپیوٹر کوئی جیسا پچھلے دور کی طرح ایک نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے ہر کوئی واقف بھی ہے۔ تو آخر سوال یہ آتا ہے کہ کمپیوٹر ہے کیا اور اس کی تعریف ہم کس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ تو کمپیوٹر کی تعریف اگر بیان کرنا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا الیکٹرک آلہ ہے۔ کیا ہے کمپیوٹر؟ ایک الیکٹرک آلہ ہے جس کا کام ڈیٹا کو حاصل کرنا۔ کیا کام ہے اس کا؟ ڈیٹا کو حاصل کرنا، پھر اس پر عمل کرنا، اور اس کے علاوہ اس کا تجزیہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری دی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ہماری دی ہوئی ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ ہم مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر ایک الیکٹرک آلہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ ڈیٹا کو حاصل کرتا ہے اور اس ڈیٹا کے مطابق عمل کرتا ہے، اور جو اس کو معلومات دی گئی ہے اس کا وہ کیا کرتا ہے؟ کمپیوٹر انالیسس کرتا ہے، یعنی تجزیہ کرتا ہے۔ جو بھی ہم معلومات دیتے ہیں اس کا تجزیہ کرنا یہ الیکٹرک آلہ کا کام۔ اس کے علاوہ جو ہم معلومات، جو ہدایت ہم اس کو دیتے ہیں انہیں ویسا کرنا ہے۔ اب ان تمام پوائنٹ سے نکات کے تحت ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کمپیوٹر کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے ڈیٹا جمع کرنا پڑتا ہے، مطلب اس کو تمام باتیں جو ہے اس میں انسٹال کرنا پڑتا ہے، جس کو ہم انسٹال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں، مختلف اپلیکیشنس ہوتے ہیں جو ہم کمپیوٹر میں کیا کرتے ہیں؟ اپلوڈ کرتے ہیں، اس میں یہ سب چیزیں ایڈ کرتے ہیں۔ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس پہ اپنی جو بھی معلومات ہے وہ اس کو دیتے ہیں۔ وہ کمپیوٹر کیا کرتا ہے؟ وہ جو معلومات ہم نے دیا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اس کا تجزیہ کرتا ہے، اور اس کے نتائج یا اس کی جو باتیں ہیں وہ ہم تک پہنچاتا ہے۔ ہم نے مختلف فائلیں وغیرہ دیکھی ہوگی، کوئی چیز ہے ہم گوگل پہ کیا کرتے ہیں؟ جا کے کوئی معلومات دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ معلومات ہم تک پہنچاؤ۔ وہ ڈیٹا گیا اس کو، وہ اس پہ عمل کرتا ہے اور وہ معلومات کو پورا تجزیہ کر کے ہمارے سامنے وہ پوری معلومات لا لیتا ہے۔ پھر ہم جیسی اگلی ہدایت دیتے ہیں انہیں اس طریقے سے کام کرتا ہے۔ اب دیکھیے کمپیوٹر جب سوال آتا ہے تو کمپیوٹر کس زبان کا لفظ ہے؟ کیا کمپیوٹر اردو زبان کا لفظ ہے؟ انگلش ہے؟ لاطینی ہے؟ کون سا زبان کا لفظ ہے؟ تو کہا گیا ہے کہ کمپیوٹر یونانی زبان کا لفظ ہے۔ کون سی زبان ہے؟ یونانی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب
कंप्यूट करना या हिसाब करना होता है। कंप्यूट करना या हिसाब। देखिए, जब इसकी इजाद हुई थी इस इलेक्ट्रिक आले की यानी कंप्यूटर की, तो उस वक्त सबसे बड़ा जो इसका मकसद था इजाद का, वो मकसद था कि बड़े बड़े जो हिसाब किताब है यानी गिनती करना और ज़रब तक़सीम मनफी वगैरह जो हिसाब किताब है वो चीज़ रखना, ये मेन मकसद था। कंप्यूटर का मकसद यही था कि भाई जिस तरीके से हम बैंक वगैरह में देखते हैं, बस उसी के लिए इसको तरतीब दिया गया था इब्तिदाई दौर में यानी यूनान में। और इसका कंप्यूटर कंप्यूट से बना है यानी इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ गिनती हिसाब किताब रखना, और जो मालूमात हम जल्द से हिसाब को जल्दी कर नहीं सकते, उसका काम है कि जल्द से जल्द उस हिसाब को कर सके। लेकिन आज जितनी तेज़ी से इतने वो अमल करता है वो उतना भी नहीं था, बल्कि इससे ज़्यादा धीमा था। तो ये होगा कंप्यूटर। क्या है कंप्यूटर? यूनानी लफ्ज़ है जो किससे बना है? कंप्यूट से बना है, और जिसके मायने क्या होते हैं? कंप्यूट करना। कंप्यूट करना मतलब हिसाब किताब करना। अब इसकी तफसील से अगर तारीफ बयान करना है तो ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इंफॉर्मेशन और डेटा को इनपुट डिवाइस से हासिल करती है और दी गई हिदायत के मुताबिक प्रोसेस करके आउटपुट के ज़रिए रिज़ल्ट ज़ाहिर कर देती है। चलिए, ये बातें तो अक्सर हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि भाई इसको किताबी तारीफ़ कैसी। किताबी तारीफ़ का मतलब ये है कि जो किताब में कंप्यूटर के वास्ते तारीफ़ लिखी गई है। क्या कहा गया है कि ये एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है? इंफॉर्मेशन लेती है यानी डेटा हासिल करती है, इनपुट डिवाइस से क्या करती है? इंफॉर्मेशन इसको कहाँ से मिलता है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मीन्स जो अंदर ही क्या है बने हुए जो ऐप है उसके ज़रिए से हासिल करती है और दी गई हिदायत के मुताबिक प्रोसेस करती है। प्रोसेस करना मतलब उस बात पर अमल करना जो यहाँ पर डेटा मिला है इनपुट डिवाइस के ज़रिए से, उस पर लेना, उस पर काम करना, प्रोसेस करना, और प्रोसेस करने के बाद क्या करता है कंप्यूटर? उसका रिज़ल्ट फाइनल करता है। मतलब जो भी बात, जो भी मालूमात दी गई थी उसको प्रोसेस करने के बाद उसका जो हमने जो हिदायत दी थी उसका हमें रिज़ल्ट बता देती है। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इंफॉर्मेशन और डाटा को इनपुट डिवाइस से हासिल करता है, और हासिल करने के बाद दी गई हिदायत के मुताबिक, मतलब जैसा हमने उसको हिदायत दी फिर उसके मुताबिक वो क्या करता है? अमल करता है, प्रोसेस करता है, और उसके बाद उसका रिज़ल्ट ज़ाहिर कर देता है। तो इसे कहते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इंफॉर्मेशन और डेटा इनपुट डिवाइस से हासिल करता है और उसको दी गई मालूमात, दी गई हिदायत के मुताबिक वो अमल करता है, प्रोसेस करता है, और उसके बाद रिज़ल्ट ज़ाहिर करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर जदीद दौर का एक मुफीद तरीन और हमागीर अहमियत का हामिल है जो हिसाब के सवाल और पेचीदा शुमारियाती मसले मुकर्ररा और मुहैया की गई हिदायत के मुताबिक आसानी से हल कर लेता है। फिर इन हिसाबात के नताइज या तो ज़ाहिर कर देता है या अपने पास महफूज कर देता है। मतलब जो जिसको ऐसा हिसाब किताब जिसको बहुत ज़्यादा वक्त लगने वाला था, ये क्या करता है? ये मशीन क्या करती है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन कुछ इतने वक्त पे उनके साथ ही पूरा रिज़ल्ट ज़ाहिर कर देती है या अपने पास ही यानी कंप्यूटर में ही
महफूज करने के लिए, सेव करने के लिए। कंप्यूटर के अक़साम की बात की जाए तो ये 3 अक़साम हो इसके कह सकते हैं हम कि कंप्यूटर कितने किस्म के, 3 किस्म। अब कौन कौन से है तो कहा गया है कि कंप्यूटर जो है वो है एक एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड है डिजिटल कंप्यूटर, हम जब तीसरे इसकी किस्म पे आते हैं उसका नाम है हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर के अक़साम की जब हम बात करते हैं तो हमें 3 किस्म के अक़साम देखने मिलते हैं। एक है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। कहने का मतलब ये है कि पहले दौर में जैसी ज़रूरत हुआ करती थी, जो मसला होता था, सिर्फ उसी मसले को हल करने के लिए कंप्यूटर में मुख्तलिफ क्या है तब्दीलियाँ लाई गई। पहले कंप्यूटर सिर्फ एक हिसाब किताब करने का आला था जिसकी क़सामत भी ज़्यादा थी और उसका वज़न भी ज़्यादा था और उसके साथ साथ उसकी कीमत भी क्या है बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे उसमें क्या होता गया, नई नई ईजादात होती गई, नई नई मालूमात उसमें शामिल होती गई और उसके बाद के जो दौर आया उसमें नया एक कंप्यूटर ईजाद किया गया, नए कंप्यूटर के अक़साम मैदान में आए जिसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। मतलब पहले से ज़्यादा तरक्की याफ्ता दौर यहाँ पर आ चुका था, इसलिए कंप्यूटर में बहुत सारी तब्दीली लाई गई। जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि वैक्यूम और उसका वॉल था, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखे हमने कि चिप का इस्तेमाल करके उसकी जसामत में खुद ब खुद क्या हो चुका था, फ़र्क हो गया था, उसकी जसामत कम हो चुकी। बिल्कुल उसी तरीके से धीरे धीरे आगे चलकर डिजिटल कंप्यूटर ने क़दम रखा और यहाँ पर भी कंप्यूटर के इसके मक़ासिद भी बदलते गए। सिर्फ़ और सिर्फ इस दौर में सिर्फ कंप्यूटर का मकसद हिसाब किताब रखना ही नहीं था, बल्कि दूसरे जो भी मामलात है उसे भी मुकम्मल करना, उसे भी पूरा करना ये मकसद था, जिसकी वजह से इसमें तब्दीली लाई गई। इसके अलावा नए हाइब्रिड कंप्यूटर जो है और इससे ज़्यादा तरक्की याफ्ता जो शक्ल है कंप्यूटर की वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाती है, जिसमें तो उसमें साइज़ इतनी छोटी छोटी होती चली गई कि आज हम देखते हैं कि मोबाइल जो है एंड्रॉयड मोबाइल वगैरह में भी हम अच्छे खासा काम कर नहीं सकते। यानी इतनी छोटी शक्ल में कंप्यूटर्स आ चुकी है और उसकी रफ्तार, उसके जो मेमोरी रखने की है उसकी भी रफ्तार क्या है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है और इस पर भी क्या है तहक़ीक़ जारी है, इसमें और बहुत सारी बातें नई आने वाली है। तो खैर आज हम सिर्फ यहाँ पर कंप्यूटर के क्या है उसकी हमने किताबी जो तारीफ़ है उसका मुताला किया है और उसके साथ साथ कंप्यूटर के अक़साम कौन कौन से हैं इसका हमने यहाँ पर मुताला किया है। इसके अलावा और बहुत सारी जो बातें हैं कंप्यूटर के ताल्लुक़ से तो हम धीरे धीरे इसका आगे पढ़ते जाएंगे, मगर इतना जहन में रखते हुए आज हम यहीं पर रुक जाते हैं।